Good morning all of you and welcome to Gyanjyoti online classes. And dear students, today we will be discussing about chapter number 15, that is present and past participle. Present and past participle of class 5 English grammar. Okay. So before going to the present and past participle, first of all we have to know what is participle. So participles are generally words that are formed from verbs. Okay, participles are words that are generally formed from verbs. Okay, which ends in ing, that is in present case, and d, ed, and en or t. Okay, this is in case of your past participle. Okay, so note it down. What is meant by participle? Participle are words formed from a verb. Participles are words that are generally formed from a verb. Get it? So participles are broadly classified into three types. Participles are classified into three types. Okay. Participles are classified into three types. That is your present participle, past participle, and future participle. Okay. So participles are classified into three types, that is your present participle, past participle, and future participle. Okay. So in case of present participle, we use the first form of the verb. Okay, for the base form of the verb, and with that we use ing form. Okay, we use the first form of the verb plus ing, while we use the third form of the verb in case of your past participle. Okay, and in case of future participle we use having plus third form of the verb. Okay, so generally there are 5 forms of verbs. Okay, there are five forms of verbs. Okay, there are 5 forms of verbs that are V1, V2, V3, V4, verb 5. Okay, there are 5 forms of verb. Okay, तो पार्टिसिपल क्या हुआ? जो पार्टिसिपल है वो क्या है, वर्ब से लिया गया क्या है, एक वर्ड है जो कि क्या है हम कई जगह पे क्या है यूज करते हैं. एंड द पार्टिसिपल act as an adjective in a sentence. Okay, or the verb. Okay, the verb act as an adjective in a sentence. So when a verb act as an adjective, then we call it as a participle. जब verb adjective के तौर पे काम करता है एक सेंटेंस में, तो उसको क्या है हम participle क्या है कहते हैं. Get it? और participle के क्या है 3 फॉर्म. participle जो है वो 3 टाइप्स के हैं, और हम कह सकते हैं जो participle है वो 3 टाइप्स में क्या है डिवाइडेड है, जो कि क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल एंड फ्यूचर पार्टिसिपल. ठीक है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, उसके साथ क्या है आईजी लगा कर इसको बनाते हैं. जबकि क्या है पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, एंड इन फ्यूचर पार्टिसिपल वी यूज हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, लेट्स से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या है, एग्जांपल लेते हैं क्या है ईट. ठीक है ना, तो उससे पहले जानते हैं कि वर्ब क्या है 5 फॉर्म्स होते हैं. वो क्या है वर्ब 1, 2, V3, V4 एंड V5. फॉर एग्जांपल 2 का लेते हैं. ठीक ना, ये 2 जो है वो क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है. उसका सेकंड फॉर्म क्या होगा डिड. ठीक है ना, थर्ड फॉर्म क्या है डॉन, फोर्थ फॉर्म क्या होगा डूइंग,
और फिर फॉर्म क्या होगा डज, ठीक है ना, डू डिड डन डूइंग डज। ये ऐसी क्या है, हम एक फॉर्म क्या है अलग अलग क्या है फॉर्म्स वगैरह क्या है बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से eat, okay, so eat is the base form of the verb, okay, or you can say it is the first form of the verb. We add ing to this verb, we add ing to this verb, okay, so it becomes your eating, okay, it becomes your eating, which shows the present participle, okay. But in case of participle VP form, that is eat, becomes your eaten, okay, and in case of future participle we use having eaten, have been eaten, okay. Okay, so participles, three types of participles: present participle, past participle, future participle. So no need to discuss about your future participle. We will discuss about our present participle and past participle, okay. So present participle shows that the verb or action is in progress. You can call present participle or continuous form, okay. It shows that the verb or something, some actions are in progress, while the past participle shows that something has already been done, the work has completed, okay. Here look, present participle and past participle so in case of present participle, the verb fourth form act as an adjective, while in case of your past participle, the verb third form act as an adjective, okay. Here in present participle, verb fourth form act as an adjective, while in case of verb third form act as an adjective in case of your past participle, okay. So present participle generally shows that some action or the verb is in continuous process, okay, it is in continuous process. So while verb first fourth form act as an adjective, we can call it as a present participle, and when verb third form act as an adjective, we can call it as your past participle, okay. A few while ago I have written an example. This is the fourth form of it is eating. So when this act as this verb act as an adjective, then we will call it as a present participle, and when this fourth form act as an adjective, then we can call it as a past participle, okay. So how can we make a present participle into present continuous tense or past participle into past continuous tense? We will discuss here, okay. So before going to the sentence, then how to create a present participle into present continuous tense, we let's do some numbers, okay. Let's do some examples to enable you to know about a present participle, which form of the participle we can use in a sentence, okay. So first sentence is the breaking or broken glasses were repaired, okay. So one thing I want to tell you that the present participles is in continuous form, okay. Here the adjective act as in continuous, here the verb act as an adjective which shows in continuous form, okay. Present participle means the action is incomplete, that means the process is still going on in case of your present participle, okay. While in case of your past participle, the action has been
completed. The action shows that the verb shows that the work has been completed in case of your past participle. ठीक है ना. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है, जो वर्क रहते हैं या फिर जो एक्शन रहते हैं वो कंटिन्यूस प्रोसेस में क्या है, चलते रहते हैं. लेकिन पास्ट पार्टिसिपल में जो वर्ब रहते हैं या फिर एक्शंस रहते हैं वो क्या है, खत्म हो चुके होते हैं. तो हमको देखना है कि कौन सा सेंटेंस में हमको पास्ट पार्टिसिपल यूज करना चाहिए, किस फॉर्म में हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करना है और किस फॉर्म में हमको क्या है, पास्ट पार्टिसिपल यूज करना है. ये एग्जांपल देखो समझ में आ जाएगा. सो द फर्स्ट एग्जांपल, द ब्रेकिंग ऑफ ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड. ओके, repaired is in which case? It is in a past case. Okay, so here obviously we will take the broken. Okay, here the broken or third form will act as an adjective. Okay, so here the breaking or broken glasses were repaired. The repaired shows the past tense, means the work has been completed. यहाँ पे वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया है. ठीक है ना. तो उसमें क्या है, हम वर्ब के कौन से फॉर्म को यूज करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे जो क्या है, ब्रोकन है. ठीक है ना. ब्रोकन जो है वो क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म. तो जहां पे हमको लगे कि वर्ब कंप्लीट हो चुका है वहां पे हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करके क्या है, हम सेंटेंस को क्या रेक्टिफाई कर सकते हैं. हम ये नहीं लिख सकते, वी कांट राइट दैट द ब्रेकिंग ग्लासेस वर रिपेयर्ड. ओके, ब्रेकिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो कि चल रहा है, अभी तक खत्म नहीं है. अब जो चीज खत्म नहीं होगा उसको रिपेयर कैसे करेगा वो. तो इंसान अगर रिपेयर करना चाहता है, जो चीज चल रहा है, ब्रेकिंग हो रहा है, उसको कैसे रिपेयर करेगा, जब तक वो पूरी तरह से खराब ना हो जाए, टूट ना जाए, वो रिपेयर कैसे करेगा. ओके, सो द ब्रेकिंग और ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड. सो द करेक्ट वन विल बी योर ब्रोकन, दैट इज फॉर थर्ड फॉर्म, व्हिच शोज दिस रिपेयर शोज दैट द ग्लासेस वर ऑलरेडी broken. Okay, let's come to second form. I saw him breaking or broken the glass. इस सेंटेंस में क्या है, हमको क्या है, एक काम जो है वो चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, वो दिखाई दे रहा है. ठीक है ना. यहाँ पे कोई काम खत्म हो चुका है ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है. So here the third one is your breaking verb. Fourth form will be your correct one. Okay, so I saw him breaking the glass. I saw him ब्रेकिंग द ग्लास. मैंने ग्लास को तोड़ते हुए देखा. ठीक है ना. एक जो प्रोसेस है वो चल रहा है. तो ये जो है हम लोग का क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल केस में क्या है, आएगा. ठीक है ना. और ये जो है हमारा पास्ट पार्टिसिपल केस में आएगा, क्योंकि जो काम है टूटने का काम वो हो चुका है. ठीक है ना. कम टू थर्ड, डेवलप्ड कंट्रीज were given opportunities. So there are some cases where both the present participle as well as your past participle they act simultaneously. Okay, they act both ways. They act in the both ways. That will be your past participle or present participle. ठीक है. Developing countries were given opportunities, ये भी सही है. और developed countries were given opportunities, ये भी सही है. Developed countries कौन है, जो कि पूरी तरह से डेवलप हो चुके हैं. ठीक है ना. और डेवलपिंग कंट्रीज कौन है, जो अभी भी क्या है, वो प्रोसेस में क्या है, कंटिन्यू चल रहा है. तो उनको क्या दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, दिया जा रहा है. किसी भी चीज के लिए क्या उनको कुछ ना कुछ क्या अपॉर्चुनिटीज क्या है, दिया जा रहा है. डेवलपिंग कंट्री को भी और क्या डेवलप्ड कंट्रीज को भी. तो इन दिस केस द प्रेजेंट पार्टिसिपल एज वेल एज द पास्ट पार्टिसिपल दे एक्ट इन बोथ वेज. ओके, लेट्स कम टू फोर्थ. ए कंट्री रेस्पेक्ट लॉ अबाइडिंग और अबाइडेड सिटीजंस. यहाँ पर देखो, ए कंट्री रेस्पेक्ट, कंट्री किसको रेस्पेक्ट करते हैं, लॉ अबाइडिंग. अबाइडिंग का मतलब होता है मानना. ओके, तो ए कंट्री रेस्पेक्ट लॉ अबाइडिंग, जो लॉ को मानते हैं उनको वो रेस्पेक्ट करता है. और जो लोग मानते हैं या मान रहे हैं, दोनों क्या है, ये केस में भी क्या है, जो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज होगा और पास्ट पार्टिसिपल भी क्या है, यूज होगा. क्योंकि देखो जो कंट्री है वो किसको रेस्पेक्ट करता है, लॉ अबाइडिंग, ये भी सही है. ठीक है ना. और लॉ अबाइडेड. ठीक है ना. लॉ अबाइडिंग मतलब जो नियम को मान रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, उसको भी कंट्री क्या रेस्पेक्ट करता है. ठीक है ना. जो कर रहे हैं और जो करते थे उनको भी क्या है, वो रेस्पेक्ट क्या है, करते हैं. ठीक है ना. तो ये केस में क्या है, पास्ट पार्टिसिपल भी यूज होता है और क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी यूज होता है. ओके, देन हाउ कैन वी क्रिएट प्रेजेंट पार्टिसिपल इनटू प्रेजेंट कंटीन्यूअस फॉर्म. We will be discussing by making a table. Okay. So look at the table. Okay. So here we can make a present participle into present continuous form. Okay. And
past participle into your past continuous form. Okay. So look at the sentence. We can make present continuous form. Okay, we can make present continuous form by adding is, am, are to the first form of the verb. Okay, the fourth form of the verb, that is play, playing. Okay, we can write playing also. No need to worry about it. We can add is, am, are to the first form of the verb along with adding ing to the form. Okay. Similarly, we can use was, were to the first form of the verb. Okay, along with adding ing to the first form of the verb in case of your past continuous form. Okay, and we will make a sentence in this way. Okay, so we can use is. See the example: is playing. Okay, is play ing. We use these three words. Okay, we use three words to make a present continuous form. Example: Mohit is playing cricket. Okay, Mohit is playing cricket. Okay, Mohit is playing cricket. It is in your present continuous form. ठीक है ना, ये किसमें है? आप लोगों का क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में है। कंटिन्यूअस का मतलब ही क्या होता है? जो क्या है, एक प्रोसेस में चल रहा है। तो मोहित इज प्लेइंग क्रिकेट, मोहित क्या है, क्रिकेट खेल रहा है, प्रोसेस में क्या है, चल रहा है, वही क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है। ठीक है ना। देन कम टू एम रीडिंग, ओके, एम रीडिंग, ओके, एम रीडिंग। यू कैन आल्सो यूज द एम टू मेक सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। I am reading a novel. Okay, I am reading a novel. That means the novel is being read by me. Okay, is being read by me. That is the process is continuing. Okay, the process is still going on. Reading novel is the process is still going on. We are watching TV. हम टीवी देख रहे हैं, वो प्रोसेस क्या है, चल रहा है, वही क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है। ठीक है ना। पार्टिसिपल को हम लोग क्या है, कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। पार्टिसिपल को हम लोग कैसे पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या है, यूज कर सकते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज करने के लिए हम क्या है, इज, एम, आर को क्या है, यूज करके उसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी को यूज करके हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म बना सकते हैं। उसी तरह क्या है, जो पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म है उसमें क्या है, वाज और वेर का यूज करके हम क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म बना सकते हैं। ओके, वाज सिंगिंग, ओके, वेर मेकिंग, शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग। ठीक ना, वो गाना गा रही थी, शी वॉज सिंगिंग सॉन्ग, वो गाना गा रही थी। द चिल्ड्रन वेर मेकिंग नॉइज, द चिल्ड्रन वेर मेकिंग नॉइज मींस द चिल्ड्रन जो थे वो क्या है, शोरगुल क्या है, कर रहे थे। तो वो तुम लोग क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस, मतलब पास्ट में वो चीज क्या है, चल रहा था, कंटिन्यू हो रहा था। पास्ट में क्या है, वो चीज क्या है, कंटिन्यू हो रहा था। ठीक है ना, वो कंप्लीट नहीं हुआ था, उसको हम क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब तुम समझ जाना कि कोई भी चीज क्या है, कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है ना, प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है या फिर क्या, वो पास्ट में वो चीज क्या है, कंटिन्यू हो रहा है या हो रहा था। ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट योर प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है, तुम लोग को क्या मैंने बता दिया। पार्टिसिपल क्या है, जनरली क्या है, वो एक वर्ड है जो कि क्या है, वर्ब से क्या है, लाया जाता है। जैसे वर्ब ईट है, ईट का जो पार्टिसिपल होगा वो क्या है, एटिंग होगा या फिर क्या है, ईटेन होगा। ठीक है, डू का क्या है, डू का क्या है, पार्टिसिपल क्या होगा, डिड होगा, और सॉरी डन होगा या फिर क्या है, डूइंग क्या है, होगा। तो देखो हम लोग का क्या है, जो 5 फॉर्म है वर्ब के, V1, V2, V3, V4 और V5, जो 5 फॉर्म है, इनमें से 2 ही फॉर्म क्या है, पार्टिसिपल में क्या है, यूज होता है। ठीक है ना, वर्ब का 3rd फॉर्म, ठीक है ना, और वर्ब का 4th फॉर्म क्या है, खाली पार्टिसिपल में ही यूज होता है। देखो यहाँ पे जो प्लेइंग है, ठीक है ना, एग्जाम्पल देखो, ये जो प्लेइंग है, ये वर्ब कौन सा फॉर्म है, 4th फॉर्म है। ठीक है ना, क्या है, 4th फॉर्म है, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या है, वो यूज हुआ है। ठीक है ना, यहाँ भी है लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में है। पास्ट परफेक्ट होता तो वो क्या है, केस अलग क्या है, हो जाता। ठीक है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट your our today's class, that is present participle and past participle. Okay, so look at the sentences of present participle and past participle. Victor is writing a story.
I am singing a song. Okay, so here the process is continuous. Okay, the process is continuing, and also we have added ing form, ing to the first form of the verb. That means it is in present participle. In case in present participle we add ing to the first form of the verb, or we can say that we use the fourth form of the verb. Okay, तुमको क्या है, कंफ्यूज हो रही होगी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी बोल रहे हैं और फोर्थ फॉर्म भी बोल रहे हैं, सब क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे एक है इफ नहीं लेते, ठीक है, इफ हम लोग का क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है ना। इसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म कैसे बना सकते हैं, बाय अरेंजिंग, ठीक है ना। ई प्लस ing लगाएंगे क्या होगा, ईटिंग होगा, ठीक है ना। वर्ब का मैंने क्या बोला था, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या है, ing लगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या हमने ing लगा कर ईटिंग। तो इसको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाकर ऐसे बोलने से अच्छा क्या है, हम वर्ब के फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है, वर्ब के फोर्थ फॉर्म का क्या है यूज करते हैं हम, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या है होता है। तो इसकी जगह पे हम ये भी कह सकते हैं, इसकी जगह पे हम ये भी क्या है कह सकते हैं, दोनों इक्वल है, ठीक है ना। देखो क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है ना। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो एक वर्ब को क्या है कंटिन्यू हो रहा है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है, एक वर्ब जो है वो क्या है कंटिन्यू रहता है, लेकिन पास्ट पार्टिसिपल किसको इंडिकेट करता है, वो वर्ब को क्या है जो कि कंप्लीट हो चुका रहता है उसको क्या है इंडिकेट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, नताशा हैज कॉल्ड अप फ्राइज, कॉल्ड अप फ्राइज इसका मतलब क्या है, जो वर्ब था वो पहले क्या है खत्म हो चुका है, जो कि क्या है कंप्लीट एक्शन को क्या है दिखा रहा है। इट शोज द कंप्लीट एक्शन इन केस ऑफ योर पास्ट पार्टिसिपल। ओके, दे हैव क्लीन्ड द रूम, दैट मींस द रूम हैज already been cleaned by them. The work has already been completed. Okay, the work has already been completed. While in case of the present, okay, the work is incomplete. Okay, here work is incomplete for in case of a past participle, work or action is already completed. Okay, तो इस तरह से हम प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर पास्ट पार्टिसिपल को क्या है यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और पार्टिसिपल को यूज करके क्या है हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस फॉर्म में इसको यूज कर सकते हैं और पास्ट फॉर्म में भी इसको यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर चैप्टर नंबर 50, दैट इज प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल। इन द नेक्स्ट क्लास we will start our new chapter, that is chapter number 16. That is the most interesting chapter. Okay, I will make it a most interesting chapter that will be helpful to you the rest of your life. Okay, so this is about present and past participle. Hope you have got it clearly. Okay, so enjoy your online classes and stay home and stay safe. Thank you.